Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit, structure of an atom, from 11th class, and today our topic is the emission spectrum of hydrogen atom. In the last video we done the atomic spectrum and the type of atomic spectrum, and these types are absorption spectrum and second one is the emission spectrum. And today our topic is the emission spectrum of hydrogen atom. Now the question, how we are able to observe or find out the emission spectrum of hydrogen atom. For this we take a discharge tube, and inside this discharge tube we put the hydrogen gas under a low pressure and then passes the electric discharge through this hydrogen gas. After that, the emitted radiations or the emitted light analyzed with the help of spectroscope, and we are able to observe the emission spectrum of hydrogen atom. Means जब हम emitted light को analyze करते हैं spectroscope में, then we see the number of fine lines, and these fine lines constitute the emission spectrum of hydrogen atom. These fine lines are grouped together in different series, and these are named as, means जो ये series हैं, these are named as after the name of their scientist or the discoverer. First series is the Lehman series, discovered by the scientist Lehman. Second is the Balmer series, after the name of scientist Balmer. Then Paschen series, Brackett series, Pfund series, and one more is the Humphrey series. Now the question, how these series are observed या how these series are obtained in the emission spectrum of hydrogen. अब इनिशियली हम यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लेकर चले थे? हाइड्रोजन गैस, मीन्स H2 molecule, and there are millions of the hydrogen gas molecules, and when we passes the electric current or the electric discharge, then these hydrogen molecule breaks and result into the formation of hydrogen atoms. One hydrogen molecule gives the two hydrogen atom. Means millions अगर hydrogen molecules हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे? Billions of the hydrogen atom, and each hydrogen atom contain one electron. Means आपके पास इस discharge tube में billions of hydrogen atom होंगे और हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन होगा, तो billions of the electron must be there in the discharge tube. अब डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे? दे एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड दे मूव फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. और हम क्या कह सकते हैं? दे मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. एज वी नो दैट एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मीन्स energy increases as the electron move to the excited state, so the stability decreases. So in order to get stabilized, electron has tendency to come back to the ground state, and for this it must be loses the energy or emitted the energy. और यही हमने कहा कि emitted light को जब हम एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप में तो हमें क्या मिलता है? emission spectrum of hydrogen atom. अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाएगा, that must be moved to the different energy levels. अगर हम किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम में क्या होता है? सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, हैविंग द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में जो ये मैंने सर्कुलर रिंग्स दिखाई है, मींस दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक शेल, जिनको हम डिनोट किससे करते हैं? KL, M, N, O एंड सो ऑन. या फिर हम इनको बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, और इस तरह से हम इसको कहाँ तक लेकर जा सकते हैं? अप टू द इनफाइनाइट लेवल. आपको इस डायग्राम को बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है बेटा
कि जो शेल आपके पास न्यूक्लियस के नजदीक है, मींस फर्स्ट शेल, इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइडेड टू द फर्स्ट शेल बाय द न्यूक्लियस। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे मूव करेंगे, मींस एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस या टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक शेल, तो शेल न्यूक्लियस से क्या करती चली जाएंगी, दूर होती चली जाएंगी और एक दूसरे के पास आती चली जाएंगी। मींस आपके पास अगर ये फर्स्ट शेल है तो सेकंड शेल ये है, थर्ड शेल ये, फिर ये आपके पास फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। अगर आप इसमें देखते हो तो मैंने फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा दिखाया है, सेकंड और थर्ड के बीच में कम हो गया, थर्ड और फोर्थ के बीच में और कम। मींस जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे या वी मूव आउटसाइड द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक शेल, तो इन शेल के बीच का जो गैप है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द लेस न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फील बाय द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर हम इन सर्कुलर रिंग्स को या एनर्जी शेल को इस तरह से खोल के दिखाएं तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट और अप टू द इन्फिनिटी, मीन्स लास्ट ये कितनी शेल हो सकती हैं आपके पास। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से और मूव कर जाएगा कहां पर, एक्साइटेड स्टेट पर। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो कैसा रहेगा, अनस्टेबल, तो इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट। अब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट लेवल से एक्साइट हुआ तो उसके लिए तो सेकंड भी एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, सारी जितनी ये हायर एनर्जी लेवल्स हैं वो सारे के सारे क्या बिहेव करेंगे, एज अ एक्साइटेड शेल और एक्साइटेड स्टेट। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो वो कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, मे बी वो एट्थ लेवल से कहाँ आ जाता है, इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, मे बी सेवंथ से, सिक्स्थ से, फिफ्थ से, फोर्थ से, थर्ड से या फिर टू से। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, ग्रुप ऑफ लाइन या सीरीज बन जाएगी जिसका फर्स्ट नेम हमने क्या रखा था, लेमैन सीरीज। जो लेमैन सीरीज है वो कहां पर ऑब्जर्व की जाती है, इन द यूवी रीजन, मींस अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। इसमें हमें ध्यान क्या करना है कि एक्साइटेड स्टेट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, फर्स्ट शेल। तो अगर हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में है तो लेमैन सीरीज, लेकिन अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या आ जाती है, सेकंड लेवल, मींस सेकंड एनर्जी शेल, इस तरह से हमारे पास यहां पर भी क्या होंगी, ग्रुप ऑफ लाइंस होंगी, जिसके लिए एक्साइटेड स्टेट तो कोई भी लेवल हो सकता है, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सा है, n इज इक्वल टू 2 एंड दैट ग्रुप ऑफ लाइन or the series is known as the Balmer series, and this Balmer series is visible in the visible region of the electromagnetic spectrum। थर्ड हमारे पास पार्शियन सीरीज है, उसमें हमारे पास जो ग्राउंड लेवल होगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हमारे पास ब्रैकेट सीरीज होगी तो वहां पर ग्राउंड लेवल हमारे पास कौन होगा, फोर्थ शेल, मींस n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। अब जो हमारे पास ये पार्शियन, ब्रैकेट या फर्न सीरीज या हेम्फ्रे सीरीज आएगी, ये कहां पर मिलेगी हमें, दीज आर ऑब्जर्व इन द IR रीजन, मींस इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और दीज ग्रुप्स ऑफ लाइंस कॉन्स्टिट्यूट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नई टर्म हमारे पास यहां पर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं, दैट इज द लिमिटिंग लाइन। किसी भी स्पेक्ट्रम में लिमिटिंग लाइन तब ऑब्टेन होगी जब आपके पास जो हायर एनर्जी शेल है, मींस जो एक्साइटेड स्टेट है, वो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज इन्फिनिटी। मींस अगर वो इन्फिनिटी पर हम सेकेंड लेवल या एक्साइटेड स्टेट को कंसीडर करें, देन द स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन एज द लिमिटिंग लाइन। और जो हमारे पास ये लिमिटिंग लाइन आएगी उसके पास क्या होगी, शॉर्टेस्ट तो वेवलेंथ होगी एंड लार्जेस्ट वेव नंबर। अब जो मैंने यहाँ पर टर्म यूज की कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और लार्जेस्ट वेव नंबर आएगा, दैट मस्ट बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द रेबर्ग इक्वेशन, या हम उसको नाम क्या दे सकते हैं, रेबर्ग फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेबर्ग्स इक्वेशन या रेबर्ग फॉर्मूला। इन 1885 Balmer's develops a simple relationship among the different wavelengths of series of the visible line in the hydrogen spectrum।
अगर आपको ध्यान है, अभी मैंने आपको बताया जो बामर सीरीज है वो हमें कहाँ मिलती है, इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन के अंदर जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आई, उनकी डिफरेंट वेवलेंथ के बीच में और जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनके बीच में रिलेशनशिप देने के लिए बामर्स ने क्या दी, अपनी एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला दिया। एंड दैट रिलेशनशिप इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मींस लैम्डा। किसके इक्वल होता है, वेव नंबर के। एंड दैट इज इक्वल टू 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहां पर जो हमारे पास n है वो क्या है, एनी ऑफ द इंटीजर इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 मींस n यहां पर क्या है, या तो इक्वल टू 3 है या फिर वो किसके इक्वल है, ग्रेटर देन 3 मींस 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ये जो फॉर्मूला दिया बामर ने, इसका नाम हमने क्या रख दिया, बामर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ यूजफुल है किसके लिए, टू गिव्स ओनली द स्पेक्ट्रल लाइन इन द विजिबल रीजन। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारी सीरीज आई जो यूवी रीजन में भी थी और इंफ्रारेड रीजन में भी थी। जैसे अगर हमने बात की लेमन सीरीज की तो वो कहाँ पर थी, यूवी रीजन में। पाश्चन ब्रैकेट पीफंड सीरीज की बात करें तो वो किस में थी, आईआर रीजन मींस इंफ्रारेड रीजन में। तो उन सभी सीरीज की वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए रेबर्ग ने एक नया फॉर्मूला और रिलेशनशिप दिया जिसका नाम हमने क्या रखा, रेबर्ग इक्वेशन, या फिर हम नाम क्या दे सकते हैं, रेबर्ग फॉर्मूला। और उसी को उन्होंने मींस बामर जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में मेंशन किया। यहां पर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ किसके इक्वल आता है, वेव नंबर के इक्वल टू आर विद इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पर जो आपके पास n1 और n2 हैं ये हमारे पास इंटीजर्स हैं और इसमें क्या है, n2 ग्रेटर देन n1 मींस दीज आर द एनर्जी लेवल्स। अगर आपको ध्यान है, अभी मैंने जो दिखाया था आपको इस तरह से, तो ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो आपको ध्यान रखना है कि n2 आपके पास एक्साइटेड स्टेट है और n1 यहाँ पर क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट। जो r है वो यहाँ पर क्या है हमारे पास, रेबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स के। अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ या इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो n1 है वो किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए कैसा रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन जो n2 है वो कैसा हो जाएगा, वेरिएबल। और जो n2 वेरिएबल होगा वो किसके विद रिस्पेक्ट होगा, n1 + 1, n1 + 2 मींस उससे एक लेवल हमेशा कैसा रहेगा, हायर। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, लेमन सीरीज की, तो लेमन सीरीज में n1 क्या होगा, 1 और n2 हमारे पास क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और फिर डिफरेंट सीरीज हम क्या मानेंगे, n1 हमारे पास फिक्स होगा, बामर के लिए 2, पाशन 3, ब्रैकेट 4, पीफंड के लिए 5 और वेरिएबल हो सकते हैं उनके एक्साइटेड लेवल। अगर हमें रेबर्ग इक्वेशन लेकर चलनी है फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस मींस जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम पॉजिटिव कंसीडर करें, लिथियम 2 पॉजिटिव कंसीडर करें, तो रेबर्ग इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होगी और यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, z²। जो यहाँ पर z है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और जो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हीलियम पॉजिटिव है तो z की वैल्यू 2, लिथियम 2 पॉजिटिव है तो z की वैल्यू क्या मेंशन करेंगे, 3।